Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss our exercise 12.1 of class 9. So let us start with very first question. First question is a traffic signal board indicating school ahead. मतलब कोई भी ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो मोस्ट प्रोबेबली कौन से टाइप का होगा, ट्रायंगल शेप का, और उसमें क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड, इस तरह का कोई साइन बोर्ड है. स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्लस इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड सेम होगी, और वो दिया हुआ है ए. इस फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. तो हमें क्या फाइंड करना है, इस पूरे सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है यूजिंग. तो देखो अब यहाँ हमारे पास तीनों साइड है और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, मतलब ये पूरे पार्ट का एरिया फाइंड करना है. नाउ हाउ वी कैन फाइंड द एरिया using Heron's formula only, because if altitude and base is given then we can use half into base into height, but here all three sides are given, so we have to use Heron's formula. For Heron's formula, first S we have to find. S is equals to sum of all sides a plus a divided by 2, so we can write it is 3a by 2. This is a semi perimeter. Now what we need area. So area का formula it is in the square root s into s minus a into s minus a into s minus a. Why I have written s minus a everywhere? Because this is all sides are equal. Now if I am putting this value, then here it would be 3a by 2. Here also it is 3a by 2 minus a, and same would be repeated again and again. 3a by 2, 3a by 2 minus a. If I am simplifying this, then this would be 3a by 2 and this would be a by 2. This also would be a by 2 and this also would be a by 2. How? I had taken LCM. Now if I am taking the square root of this, then we can write a square by 4 in the bracket root 3. So we are writing it root 3 by 4 into a square. This is the formula for finding the area of equilateral triangle. Now आगे इसी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, if its perimeter is 180 centimeter, here perimeter P is equals to 180 centimeter it is given, and what will be the area of signal board. तो एरिया क्या हो जाएगा, that we have to find. So perimeter के हिसाब से what we can find first, we can find side. So perimeter of equilateral triangle is equals to, we can say 3 times side, or 3 into a is equals to 180. So 3a is equals to 180, that means a is equals to 60, a 60 centimeter. Now a 60 हो गया means हर एक साइड इतनी हो गई, तो एरिया इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल is equals to root 3 by 4 into a square. So we can write root 3 by 4 into 60 into 60. So 4 15s are. So I can write 15 6 are 90. So 900 root 3, and area's unit is always square, means square centimeter or centimeter square or square centimeter we can write. So this is our first question of this exercise, question number 1. Now moving to the next part, that is triangle of side walls of a flyover. तो फ्लाईओवर आपने जब भी देखा होगा, तो फ्लाईओवर में इस तरह से रास्ता है, तो रास्ते के ऊपर से इस तरह से आपका रोड जाता है, तो ये रोड ऊपर जाता है और यहाँ से नीचे के जाने का रास्ता होता है. तो ये रास्ता जो यहाँ पे बनेगा वो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल होगा. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का फ्लाईओवर के पार्ट में देख रहा हूँ, तो ये पार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से. एक ट्रायंगल इस साइड बनेगा ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, तो ये दोनों ट्रायंगुलर पार्ट है. The triangular walls of a flyover have been used for advertisement. तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपका स्टॉप कहीं पे आता है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल है वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो इसमें कहीं पे एडवर्टाइजमेंट होगी. अब एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे लगाएंगे, तो ये पूरे पार्ट पोर्शन में. तो ये क्या हुआ, एरिया ही फाइंड करना है. ना आगे दिया हुआ है कि यही पार्ट हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया हुआ है.
The sides of the walls are 122 meters, 22 meter and 120 meter. So ये हम मान के चलते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बट राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, हमारे पास ट्रायंगल है। तो इसमें ये पार्ट छोटा है तो इसको मैं 22 मीटर बोल देता हूँ। देन उससे बड़ा पार्ट तो ये होगा, दैट वुड बी 120 मीटर, और उससे भी बड़ा पार्ट ये है तो उसको मैं 122 मीटर बोल देता हूँ। जरूरी नहीं है कि इसी तरह से आप साइन दो, कोई भी ट्रायंगल के लिए तीनों साइड हमें दी गई है, जस्ट इतना मीनिंग है। द एडवर्टाइजमेंट ऑफ यील्ड एंड अर्निंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट से कितना पैसा मिल रहा है, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में एड लगाने का 5000 रुपीस है फॉर अ ईयर, मतलब ये ईयर में ईयर का रेंट है। कोई भी जगह पर आप रेंट पे रहते हो या तो रेंट पे एडवर्टाइजमेंट लगा दो, तो अगर उस कंपनी को पूरा का पूरा 1 साल एडवर्टाइजमेंट लगानी है तो अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया उसने यूटिलाइज किया होगा तो उसको 5000 रुपीस देने पड़ेंगे। आगे दिया है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, एक ही वॉल, यहाँ पे 2 वॉल है उसमें से एक वॉल ही उसने ली हुई है, और एक वॉल कितने महीने के लिए, तो कि भाई 3 मंथ के लिए। तो हाउ मच रेंट डिड ही पे, तो कितना रेंट उसने पे किया होगा वो हमें फाइंड करना है। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है कि हमें रेंट फाइंड करना है, और साल का रेंट ये है तो जो भी ये रेंट है डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो ये 3 मंथ का रेंट मिल जाएगा। और एरिया पहले फाइंड करना पड़ेगा कि भाई कंपनी ने कितना एरिया है वो यूटिलाइज किया है, तो एरिया पूरा का पूरा ट्रायंगल ही उसने रेंट पे दिया होगा, तो गवर्नमेंट ने ही रेंट पे दिया है तो ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सो पहले इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, पहले एरिया फाइंड करेंगे और बाद में उसको रेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेंट क्या होगा 3 मंथ का रेंट, नॉट 1 ईयर का, तो 1 ईयर के हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। Sides are, we can say A is equals to 122 meter, B is equals to 22 meter and C is equals to 120 meter। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। Now first S फाइंड करना पड़ेगा, तो S is equals to 122 plus 22 plus 120 divided by 2। So if I am subtracting, adding this, then this would be 4, here it would be 6 and this 2, so divide by 2, this would be 132 meter। So this is our semi perimeter। Now area of triangle, area is equals to formula क्या है, root s into s minus a into s minus b into s minus c। अब most of the student को प्रॉब्लम यहाँ पे आती है s minus a, s minus b और s minus c लिखने में, तो पहले से ही आप s minus a, s minus b और s minus c कैलकुलेट करके ही रखें। तो यहाँ 132 माइनस 122, तो आंसर क्या आएगा 10। ये तो s माइनस a की जगह पर वी कैन पुट 10। 132 माइनस 22 निकालते हो तो दिस वुड बी 110 मीटर, तो ये 110 लिख सकते हो इन प्लेस ऑफ s माइनस b। एंड 132 माइनस 120, सो हियर यू कैन राइट 12 मीटर। सो ये प्रोसेस है आपका कि पहले ये फाइंड कर लो और बाद में इसमें वैल्यू पुट करो, या तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। Now I am putting this value over here. So this is a s, so 132 into s minus a is equals to, I can write 10, 130 here, s minus b is 110 and this is a s minus c, it is 12. So I can write like this, so this is a area. Now I have to find the square root of this. So for finding a square root we have different methods, which first is prime factorization, second one is estimation and third one is long division। So here I can use long division। For long division first I have to multiply this, so this process will be long। Second one is estimation, for that also I have to multiply and then after I can find estimation। So here best method is prime factorization। How? So I can write 132, in place of 132 I can write 12 into 11। I am not dividing into prime factors, I am just dividing whatever I have। So I have 12, so first part I had taken 12 and second part I had taken 11। Now 10 I am writing as it is। Why I am writing 10 as it is? Because here it will have 10, so I am just making a pair of two numbers। So
11 into 10, so I can write 10 into 11, and 12 was as it is. So this is a part of this and this is a part of this. Now all the numbers are in the group of 2, 12, 12, 11, 11, 10, 10. So I can write the square root of this is equals to 12 into 11 into 10. So it would be 1320 meter square. This is the area of one wall. तो कंपनी ने 1320 मीटर स्क्वायर का एरिया रेंट पे लिया हुआ है. नाउ रेंट ऑफ वॉल is equals to what I can write area into rent, because 1 meter square का ये एरिया है. यहाँ 1320 as it is into रेंट हमें कितना दिया है 5000, तो ये 5000 लिखा, बट ये पूरा ईयर का है तो पूरे ईयर का हम डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये डिवाइड करते हो 12 से. क्यों 12 से डिवाइड करोगे तो ये हमें जो रेंट मिलेगा वो कितने महीने का मिल जाएगा, 1 महीने का. इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 से डिवाइड किया. अब 12 से डिवाइड किया तो हमें 1 मंथ का मिल गया. हमें 1 मंथ नहीं चाहिए, हमें 3 मंथ चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा. सो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ इफ आई एम डिवाइडिंग 3 4s are 12. नाउ अगेन आई एम कैंसलिंग दिस. 4 3s are 12, again 4 3s are, so 330. So this would be 33 5s are, 3 5s are 15, तो 165 और पीछे 40. So I can write this 16,50,000 rupees. That would be amount of this particular signboard or rent of this signboard. So I hope I am clear with these two examples. Now moving to the third question. थर्ड क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क. पार्क में जो स्लाइड होती है कुछ इस तरह की होती है और यहाँ पे एक लेडर होती है. तो ये लेडर से यहाँ तक का जो भी बचता है, तो ये पार्ट सामने से देखते हो साइड में से, तो ये आपको क्या दिखने वाला है, ट्राइंगल दिखेगा. तो ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है, तो वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन. तो ये पार्ट जो भी हमारा बच रहा है वहां पे उसने कुछ मैसेज लिखा है ना, कीप द पार्क ग्रीन. तो ये जो ग्रीन पार्क लिखा हुआ है ये एरिया में ही लिखा होगा, मतलब ये पूरे पार्ट का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया. इफ द साइड ऑफ वॉल्स आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, तो ये 15 मीटर का लेंथ है, ये मान के चलता हूँ 11 मीटर का और ये 6 मीटर का. हमें वो साइड कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है, बट जस्ट हमें कहाँ पे पेंट करवाना है, तो एक ही साइड पे पेंट करवाना. अगर ऑपोजिट साइड में भी अगर मुझे पेंट करवाना होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स करना पड़ता, बट यहाँ पे मुझे खाली एक ही साइड पे लिखना है, तो ये साइड का मुझे एरिया फाइंड करना पड़ेगा. नाउ अगर तीनों साइड दी गई है तो कंपलसरी हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हेरोन्स फॉर्मूला. तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एस. तो एस के लिए पहले मैं लिख देता हूँ, इसको ए, इसको बी बोल देता हूँ और इसको सी बोल देता हूँ, ये तो चल जाएगा. तो S is equals to formula A plus B plus C divided by 2. So putting I am that value, that 11 plus 15 plus 6 divided by 2. So this would be 15 plus 11, 26 plus 6, 32 by 2. So this would be 16. और मीटर में है तो मीटर में आंसर है 16. सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में तो यहाँ पे नहीं होगा, छोटा है. अब मैं हर एक वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, S minus A, S minus B and S minus C. So I can put direct the value. Now S minus A, S is 16. So 16 minus A, 11. 16 minus 15 and 16 minus 6. So ये value मैं find कर लेता हूँ, तो ये value क्या हो जाएगी? This would be 5 meter, this would be 1 meter and this would be 10 meter. Now I am finding the area. तो area of यहाँ पे लिख लेता हूँ walls. एक साइड ही है उसको ही वॉल्स बोल देता हूँ. तो इज इक्वल्स टू फॉर्मूला S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू. वैल्यू क्या क्या है, तो S की जगह पर मेरे पास 16 है, तो ये 16 इंटू S माइनस A 5 है, 5 इंटू 1 इंटू 10. अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन ही मोस्ट प्रोबेबली मैं करूंगा. तो 16 मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 16 ऑलरेडी परफेक्ट नंबर है तो 4 इंटू 4 कर देता हूँ. 5 एज इट इज रखता हूँ और 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पे 5 इंटू 2.
तो ये 2 की पेयर हुई, ये भी 2 की पेयर हुई, तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा। 4 इंटू 5 इंटू √2, तो इसका मतलब हुआ 20√2, और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर। दिस वुड बी एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड। तो हमें जो यहाँ पे जितना कलर करवाना है, तो ये एरिया होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें एक एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, ऑफ विच 2 साइड्स आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। एक साइड 18 की है, दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर की है, एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर से डायरेक्ट पता चल जाएगा, थर्ड साइड भले ही ना दी हुई बट वो फाइंड तो कर सकते हो। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 42। सो 18 प्लस 10 प्लस C इज इक्वल्स टू 42। सो C प्लस 28 इज इक्वल्स टू 42। सो C इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट 14 सेंटीमीटर। ये C 14 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये साइड आपकी 14 सेंटीमीटर है जो हमने फाइंड की है। नाउ एरिया फाइंड करने के लिए फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका S फाइंड करना पड़ेगा। तो S फाइंड करके रखता हूँ, तो S इज इक्वल्स टू, अब A प्लस B प्लस C लिखो, या तो P/2 कर दो क्योंकि सेमी पेरीमीटर की है। यहाँ पे P दिया हुआ है, अगर गलती से आपका ये आंसर गलत आया मिस्टेक की वजह से, तो इसके हिसाब से S तो राइट आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला राइट लिखा होगा, तो आधे मार्क्स तो एटलीस्ट मिल जाएंगे। तो P इज इक्वल्स टू 42/2, तो आंसर इज 21 सेंटीमीटर। दिस इज अ A। Yes, now I have to find area। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों की तीनों साइड हमारे पास होगी, हेरोन्स फॉर्मूला ही। हेरोन्स फॉर्मूला S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C फाइंड कर लेता हूँ। तो S माइनस A मेरे पास क्या हो जाएगा, तो 21 माइनस 18, S minus B 21 minus 10, और S minus C 21 minus 40. So this would be 3, this would be 11, and this would be 7. So I am putting this value over here. So S क्या है हमारे पास 21 into S minus A, that is 3 into 3. S minus B, it is 11 into 11, and S minus C, it is 7. So I am writing here 7. Now 21 के दो पार्ट यहाँ पे हो जाएंगे, 3 into 7, और बाकी का कोई भी पार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है। तो ये दो नंबर पेयर में है, तो इसका एक 3 बाहर आ जाएगा, ये भी पेयर में है तो इसका भी एक 7 बाहर आ जाएगा, इंटू √11 एज इट इज बचने वाला है। तो इसका मतलब हुआ 21√11। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ, बट साथ में यूनिट लिखना कंपलसरी है, और ये यूनिट यहाँ सेंटीमीटर था, so that's why I had written centimeter square. If it was meter, then I can write meter square. Now moving to question number 5. Question number 5 में है sides of a triangle। तो एक ट्राइंगल दिया गया है, उसकी साइड are in the ratio, तो तीनों साइड रेशियो के हिसाब से दी है 12:17:25। अब रेशियो में दी है तो हम इस तरह से डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, इसके लिए मुझे साथ में कोई ना कोई वेरिएबल लिखना पड़ेगा। तो 17x और 25x, इस तरह से मैं तीन साइड ले लेता हूँ। तो लेट द साइड्स आर 12x, 17x एंड 25x। आगे दिया है एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। तो P इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन। तो पेरीमीटर के हिसाब से पहले मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो पेरीमीटर मतलब ये A बोल देता हूँ, ये B है और ये C है, तो A plus B plus C is equals to 540. So 12x plus 17x plus 25x is equals to 540. So if I am adding this, then 17 plus 12, that would be 29 plus 25, 5x is equals to 540. So x would be 10. Therefore side A is equals to, I can write 17 into x, 10, 17 tens are, that would be 170. B is equals to, that is 12, so 12 into 10, so 120, and C, this is 25, so 25 into 10, that is 250.
but this unit is centimeter, so here also centimeter, centimeter and centimeter. So these three sides are given. Now what I have to find? Area. For finding the area, first I have to find S. So S is, I can write P by 2 or A plus B plus C divided by 2. So P by 2 means 540 divided by 2. So I can write this is 270 centimeter. This is S. As well as I need S minus A, S minus B and S minus C. So I am writing 270 minus 170, 270 minus 120 and 270 minus 250. This all I am writing. Now if I am subtracting this, then this would be 100 centimeter, this would be 150 centimeter and this would be 20 centimeter. Now I am putting the formula, area is equals to root S into S minus A into S minus B into S minus C. That formula I had put it. Now I am putting the value S in place of S. I can write 270 into 100 into 150 into 20. अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है तो किस तरह से करोगे? तो पहले 270 मीन्स आई कैन राइट 27 into 10. पहले मैं थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ. 100 मतलब 10 into 10, 150 मतलब 15 into 10 और 20 मतलब 2 into 10. तो इसमें से थोड़ा सा कम कर देता हूँ. तो ये 10 10 की पेयर है, ये भी 10 10 की पेयर है, तो उतना को बाहर निकाल देता हूँ. तो ये 100 हो गया और अंदर क्या बच रहा है? तो अंदर बच रहा है ये 27, 15 और 2 और 10. तो 27 की जगह पर 3 into 3 into 3. Why? Because 3 3s are 9, 9 3s are 27. So in place of this I had written this part. Now ये दोनों पार्ट, ये तीन पार्ट निकल गए. अब 15 की जगह पर I can write 5 into 2. So I am writing 5 into 3. Sorry, 5 into 3. So ये 15 हो गया. As well as साथ में यहाँ पे 2 है, तो 2 की जगह पर I can write 2 और 10 का भी मैं पार्ट कर लेता हूँ 5 into 2. तो ये हो गया. अब जो भी पार्ट है उसको निकाल दो. 100, तो ये दो मिल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 3. ये भी एक बार और दो बार मतलब बाहर निकल गया एक बार. ये दोनों एक एक बार है तो 5 और ये 2 भी एक बार बाहर निकल गया तो मल्टीप्लाई बाई 2. 3 3s are 9, 5 2s are 10, तो 90 into 100 तो 9000 और आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखना पड़ेगा बिकॉज जो हमें पेरीमीटर दी गई थी वो क्या थी? सेंटीमीटर में. सो दिस इज अ 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. So I hope this question you are clear with that here it is a ratio. So first we have to find sides. Now moving to next question, that is the last question of this exercise and for this year means 2020-21. This is the last sum. An isosceles triangle has perimeter. So I am drawing one isosceles triangle. These two sides are equal. Isosceles triangle has perimeter P is equals to 30 centimeter. Perimeter 30 centimeter and each of the equal side are 12 centimeter और equal side जो भी है वो दोनों 12 centimeter की है. And what we have to find? To find the area of triangle. So first for finding the area of triangle I need this side. So I am writing A is equals to B is equals to 12 centimeter and C तो हमें पता ही नहीं है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला A plus B plus C is equals to P. That is a formula perimeter का. वैल्यू पुट करता हूँ is implied A की जगह पर 12, B की जगह पर भी 12 और C that I need. तो C की जगह पर as it is C लिख देता हूँ and P की जगह पर again I have 30. So C ये 24 हो जाएगा और यहाँ पे 30 है और प्लस C तो as it is रहने वाला है. तो C की वैल्यू 30 minus 24 that will be 6 centimeter. C क्या हो जाएगा? 6 centimeter हो जाएगा. मतलब हमारी ये साइड हमारी 6 centimeter की होगी. Now first of all I need S. S का मतलब P by 2. तो P by 2 मतलब 30 by 2. आंसर क्या हो जाएगा? 15. S minus A, S minus B, S minus C अलग से फाइंड करो तो भी चल जाएगा बट मैं इस क्वेश्चन में अंदर लिख देता हूँ डायरेक्ट. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट फॉर्मूला S into S minus A into S minus B into S minus C.
Here you can write s minus a 2 times as well. Why? Because it is a isosceles triangle. Now putting the value s, it is 15, so I am writing here 15. Here 15 minus a, so 15 minus 12, again 15 minus 12, and c means 15 minus 6. Now if I am simplifying, 15 means I can write 5 into 3. Yes, 15 minus 12 means I can write 3 and again 3, and 15 minus 6 means 9. 9 means 3 into 3. I can write like this. So I had simplified and written triangle place. So these two are in pair. So I can write 3 into 3 outside of the square root, and here 5 into 3. So its answer would be 9 root 15, और ये आंसर किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर में. So I can write centimeter square. So here our exercise 12.1 of this chapter is completed, as well as we can say our part chapter is also completed. Here, if this is a quadrilateral, let's say I am just introducing this concept over here, then this side is 6 given and this side is 8 centimeter is given. So I can find what area of triangle by this formula like this, and at last we can add this area and this area, whatever this is coming, these two we can add and we can find area of quadrilateral. So in exercise 12.2 this concept is introduced, so we can find the area of this particular quadrilateral using this method. So for that, what we have to do? We have to divide the quadrilateral into small triangle and find the area of triangle using half into base into height or Heron's formula, and at last we can add these two and we can find area of quadrilateral. So I hope I am clear with this chapter. If you have any doubt, then please ask to comment box. I'll definitely try to reply you. Thank you everyone for watching my videos. Please like, share and subscribe my YouTube channel so more and more viewers can watch this video. Thank you everyone.